Good morning, students. In last part of chapter 2, federalism, we have discussed about the meaning of federalism. We have discussed about the features of federalism, and we have discussed all about the federalism. But in this video, we will talk about the federalism, but how is federalism is practiced? How is federalism practiced? किस तरीके से फेडरलिज्म वर्क करता है, वर्कआउट करता है एट रूट लेवल. All these things will be discussed in detail in this video. Okay, so the first thing, that how is federalism practiced? If we see the Constitution of India, the Constitution's provisions shows that India has been an independent country since 1947. अगर उस वक्त से देखें तो डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन फॉर्म, अलग अलग स्टेट्स हमारे देश के अंदर बने हैं. कुछ स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हुई है, कुछ नए स्टेट्स बने, कुछ पुराने स्टेट्स which were on the basis of language have been vanished, have been finished. और इसी तरीके से बहुत सारे न्यूली स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो ये सारी चीजें हमने देखी हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर द इजीनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. जबान की बुनियाद पे, भाषा की बुनियाद पे बहुत सारे स्टेट्स बने और बहुत सारी चीजें हमने. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है. स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशंस होते हैं, हमने जो बताया था डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है और उनके लैंग्वेज पॉलिसीज क्या होती है, ये सारी चीजें. सबसे पहली चीज, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म, दैट कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली देयर इज रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी आप जानते हो कई तरह की डाइवर्सिटी होती है, विच वी हैव रिटन. रिलीजियस डाइवर्सिटी, cultural diversity, regional diversity and lingual diversity. Okay, and all these diversities are respected in a democratic form of government, in a federal form of government. चाहे वो कोई भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिफर करती हो, चाहे लैंग्वेज बेस पे डिफरेंसेस हो, चाहे रीजनल डिफरेंसेस हो, कल्चरल बेस्ड डिफरेंसेस हो, ये सारी चीजों का डिफरेंस होता है. रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें कि डिफरेंट रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर अलग अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, and different followers of religions are found in this country, and they all are respected. They all respect to each others. वे सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए they all are living in this country together with full communal harmony. पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं. Even they participate in the festivals of different religions. So this is the harmony of our country. The next thing, that is cultural diversity, and as you all know that there are different cultures are found in our country. Different religions have their own cultures, traditions, उनके अपने अपने cultures होते हैं. So the constitution has given certain provisions to respect all the cultures living in this country. Similarly, regional diversity. Regional diversity की बात करें कि in some parts of India you can see different conditions of climatic conditions are found, and in north eastern की बात करें वहाँ की conditions अलग होती है. नॉर्थ की बात करें जम्मू कश्मीर साइड climatic conditions are different. इसी तरीके से राजस्थान साइड and south, and same coastal areas. All these geographical conditions, climatic conditions are different from each other. So having seen the situations of the country, having seen the diversities, there are some provisions to give them space to live with full communal harmony. The next diversity which we were talking about, that is lingual diversity. Different languages are spoken in our country, like Hindi, English, Kannada, Marathi, Telugu, Tamil, and different languages are spoken, and all these languages have an equal status. हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की. मेनी स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड. आपने पढ़ा होगा बहुत सारे स्टेट्स बने, जैसे झारखंड बना 2000 में फ्रॉम बिहार,
बिहार से अलग होकर झारखंड बना, इसी तरीके से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से ये भी 2000 में अलग हुआ, और बहुत सारे स्टेट्स, नए नए स्टेट्स जो बने हैं। इसी तरीके से नागालैंड, ये जो स्टेट्स बने हैं दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटीज, उनकी एक अलग खासियत है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे कल्चरल हो, या कोई और अलग पहचान उनकी हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस वी हैव फॉर्म्ड डिफरेंट स्टेट्स। Now we are going to talk about some of the major ways in which federalism is practiced. अब उनके major ways के बारे में बात करेंगे जिसके रूप में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। The first thing that is linguistic states. अगर आप इंडिया में linguistic states की बात करेंगे तो formation of linguistic states की बात 1947 के अंदर हुई, यानी the states were based on the language, जबान की बुनियाद पे, भाषा की बुनियाद पे स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ उसके लिए बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया उसका। लेकिन हालांकि मेनी नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट, बहुत सारे जो राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल के लीडर्स थे, उनको ये डर था, इट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, देश के बिखरने का, टूटने का खतरा था। इसीलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट एडॉप्टेड द मीडियम पाथ, द मिडिल पाथ इन दिस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर में बीच का रास्ता चुना कि इट मींस कुछ दिनों के लिए उसको पॉज करके रखा कि कोई भी स्टेट लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनेगा। बट द एक्सपीरियंसेस शोज दैट द स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज they generally make our country strong and united, यानी जो देश हमारे जबान के, भाषा की बुनियाद पे बने हैं, उनकी वजह से यहाँ ये देश यूनाइटेड हुआ है। दूसरी चीज क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी की अगर बात करें, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी रिगार्डिंग द फेडरलिज्म की डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु, मराठी, कन्नड़। 1947 के अंदर बात हुई कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, बट दिस इज द क्लियर कंसेप्ट दैट देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। मेनी पीपल जनरली यूज्ड टू से दैट हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज, बट let me clarify it, there is no specific, there is no national language of India। हाँ, official language हो सकती है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, actually only 40% people who speak Hindi, means 40% पीपल देश के अंदर ऐसे हैं जिनकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग वो हिंदी है। तो जाहिर सी बात है, दोज हु आर नॉट स्पीकिंग हिंदी दे विल अपोज ऑफ इट। इफ यू आर गोइंग टू मेक द हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, सो डेफिनेटली दोज हु आर नॉट स्पीकिंग हिंदी मीन्स 60% पीपल विल कम फॉरवर्ड टू अपोज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। हालांकि एग्रीमेंट हुआ था 1950 में, 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स तक जो ऑफिशियल वर्क्स थे इंडिया के वो इंग्लिश में काम किए गए थे, यानी सारे ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में हुआ करते थे टिल 1965। उसके बाद 1965 में व्हेन द एग्रीमेंट वाज ओवर, देन वी हैव इंक्लूडेड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, उसके बाद हमने सोचा कि लीडर्स ऑफ आवर कंट्री डिसाइडेड टू एलिमिनेट इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। सो एट दैट टाइम द स्टेट्स हु आर नॉट हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, हु आर नॉट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, दे स्टार्टेड टू अपोज इट। उन्होंने इसकी अपोज करना शुरू किया, मुखालफत करने शुरू की। इसी को लेकर खासतौर से तमिलनाडु के अंदर वायलेशंस भी हो गए, वायलेट हुए और बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, जिसको लेके कि हिंदी विल नॉट बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इन द इंटायर कंट्री। इसीलिए उसके बाद से ये तरीका अपनाया गया कि ऑल द स्टेट्स लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस विल बी इंक्लूडेड। इसी तरीके से आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, उसमें 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी पोजीशन के लिए एग्जामिनेशन देते हो तो यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ देम, यानी उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो।
ओके, सो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी। यानी लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एक तरफ कहा गया कि ये खतरा था देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए खतरा था, लेकिन बाद में कहा गया कि एक्सपीरियंसेस शोज दैट दिस मेक आवर कंट्री स्ट्रांग, मींस दे मेक आवर कंट्री यूनाइटेड। द स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, they made our country strong. Okay, now the next step, that is center and state relations, which proves that federalism is working properly. यानी सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन होता है, दैट आल्सो मैटर्स इन द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। यानी सेंट्रल और स्टेट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर शेयरिंग में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था कि सम पावर्स हैव बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी उन दोनों के दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट इशू एन ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज प्रैक्टिसिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो इशू करे कोई ऑर्डर, एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अबाइड बाय द ऑर्डर्स। मींस इट डिपेंड्स ऑन दैट स्टेट गवर्नमेंट वेदर दे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। यानी वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, आइदर दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, so this division of power which we are talking to in this video, in previous video we have also discussed about the list, union list, state list and concurrent list। यूनियन लिस्ट में वो कौन कौन से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आते थे, मींस मेनी मोर सब्जेक्ट्स हैड बीन इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। ऑन द बेस ऑन दोज लिस्ट, on those subjects, the state central government has been authorized to make the policies, to make the rules and regulations of those subjects। इसी तरीके से many subjects have been included in state list, and the subjects which are included in state list, on those subjects the state government of that region will be authorized to frame the policies regarding those subjects। इसी तरीके से concurrent list में subjects आने वाले जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये था राइट कि दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इन द मैटर ऑफ क्लैश होने की स्थिति में क्या होगा कि द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एक्सेप्टेड। यानी जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसमें वो वही एक्सेप्टेड होगा। यानी सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। फेडरलिज्म को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस होने के लिए सेंट्रल और स्टेट का एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि द ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और the orders issued by the central government must consider the problems, regional problems, problems of states, either their geographical problem, cultural problem, diversified conditions। ये सारी conditions को दिमाग में रखते हुए सारी policy frame करें। So that in this case, in this way we can say that definitely they will accept the policy framed by the central government। इसके बाद इसमें आता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग है कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन या अलायंस। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में बात की गई है। 1990 में अगर आप देखें उससे पहले तो सिंगल गवर्नमेंट हुआ करती थी, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी उसी की सारी सरकार उसी के सारे स्टेट्स में हुआ करती थी। मींस कांग्रेस वाज मोर पॉपुलर इन दिस कंट्री, सो इन कांग्रेस वाज रूलिंग थ्रू आउट द कंट्री। यानी सारे स्टेट में और सारे सेंट्रल लेवल पे भी सरकार कांग्रेस की ही हुआ करती थी। इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस था वो उस पर कुछ बैलेंस बिगड़ रहा था। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाना तरीके से अपने पावर का यूज कर सकती है। जाहिर सी बात है उन्हीं की सरकार स्टेट में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। सो डेफिनेटली दे विल यूज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। सो 1992 जो एज है एरा है, उसके बाद से क्या हुआ, रीजनल पार्टीज वजूद में आई। रीजनल पार्टीज आप जानते हैं क्या होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग एट स्टेट लेवल, एट रीजन लेवल। रीजन लेवल पे एक स्टेट लेवल पे या कुछ स्टेट्स में ये काम करती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी एंड इसी तरीके से और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी हैं, AIM और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। TMC इज ऑल्सो ए नेशनल पार्टी। TRS
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो रीजन एक स्पेसिफिक एरिया में काम करती हैं। तो 1990 के बाद के क्या हुआ कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रोथ हुआ, उनके वो लोग वजूद में आए और उन्होंने दे स्टार्टेड टू मेक एन अलायंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलायंस करना शुरू कर दिया। अलायंस को हिंदी में गठबंधन कहते हैं, जिसे मींस गठबंधन क्या होता है, व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उस सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या अलायंस कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। इट मींस व्हेन अ सिंगल पार्टी इज अनेबल टू रीच टू अप्रोच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर रूलिंग द कंट्री, if they are unable to fulfill the numbers, so in this case what happens, they generally take the support of regional parties, and after taking the support of regional parties they generally form their own government in the country. Okay, this is called a regional government, regional political parties and coalition government. Now I am going to talk about the heading decentralization in India. Decentralization is called in Hindi विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। टू अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर वे दिस वर्ड, लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, okay? If you see this diagram, then you will come to know about the decentralization in India. This is a central government. When the powers are taken away from the central and state to the local self-government, that form of government is called decentralization. That form of power is called decentralization of power, means शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दिए जाते हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। एंड इट इज वेरी मच मैंडेटरी एसेंशियल फॉर वास्ट कंट्री, स्पेशली इंडिया जो कि आप जानते हैं इट इज ए ब्रॉड कंट्री, वास्ट कंट्री। इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें, सम स्टेट्स आर देयर लाइक उत्तर प्रदेश। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करें, इट इज लार्जर देन रशिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, इट इज एज लार्ज एज जर्मनी। सो इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो एंड दे आर एक्सटेंडेड अप टू विलेज लेवल, विलेज लेवल पे फैले हुए हैं। इनका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो वाइल सिटिंग इन दिल्ली गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑल द इश्यूज ऑफ द विलेजेस, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजेस। सो फॉर दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्पेशली महात्मा गांधी हैज इंसिस्टेड ऑन दिस टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसपे गांधी जी ने सबसे ज्यादा फोकस किया था कि देयर इज नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मींस हमारा देश उस वक्त तक डेवलप नहीं कहा जा सकता जब तक कि दूर गांव में रहने वाला एक इंसान डेवलप महसूस न करे अपने आप को। यानी द पॉलिसीज, द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मस्ट बी अप्रोच, दैट मस्ट बी रीच्ड अप टू विलेज लेवल, दैट मस्ट बी फैसिलिटेटेड टू द विलेजर्स। उससे जब तक एक विलेजर्स को फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कोई महत्व या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। डिसेंट्रलाइजेशन लाने के पीछे वजह क्या है? देश के ब्रॉड होने की वजह से एक पूरे देश में सेंटर, अर्बन, रूरल जो दो कंडीशंस हैं, अर्बन एरिया में रहते हुए इंसान को रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स को समझना मुश्किल होता है, रूरल एरिया में रहते हुए अर्बन की प्रॉब्लम्स को समझना मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि दिस पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू ऑल द स्कीम्स, ऑल द पावर्स आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द पावर्स आर गिवन टू द लोकल लेवल गवर्नमेंट। यानी विलेज लेवल में रहते हुए, एक गांव में रहते हुए आप जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझ सकते हैं, हाउ टू मैनेज द फूडिंग्स, हाउ टू मैनेज द इरिगेशनल फैसिलिटीज, हाउ टू कंट्रोल द विलेज लेवल प्रॉब्लम्स and how to facilitate the villages by the schemes of central government। इन सारी चीजों को गांव तक, विलेज लेवल तक, गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? when the powers are taken away from the central government and state government to the village level to the local government, that is called decentralization of power. Okay, now we are going to talk about the form of government, union level government, state level government and local self government.
जिसमें हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। यूनियन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, जिसे दिल्ली गवर्नमेंट या विच इज elected through the general elections which is conducting throughout the country after 5 years। यानी हर 5 साल पे एक जनरल इलेक्शन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो चुनी जाती है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड by the people of that particular state which is also conducting time to time through the state elections, assembly elections। State governments are working for the welfare of states, for the interest of states। local governments की जरूरत क्यों पड़ी? हमने अभी आपको बताया था लोकल लेवल की गवर्नमेंट को विलेज लेवल तक सरकारी स्कीम्स को पहुंचाने के लिए, विलेज लेवल की प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, विलेज लेवल की जो इरिगेशनल फैसिलिटीज है, एग्रीकल्चर नॉर्म्स हैं और उनकी विलेज की जो अलग प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, वहीं विलेज के लोगों को ही उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कराया जाए पॉलिटिक्स में। इट मीन्स दे कुड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स एंड दे कुड बी बेनिफिटेड बाय द स्कीम्स, बाय द नॉर्म्स, बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय फैसिलिटीज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पावर को सप्लाई करती है लोकल गवर्नमेंट्स को, और लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। आपने पंचायती राज का इलेक्शन सुना होगा, पंचायत का इलेक्शन। इसी तरीके से अर्बन एरियाज में जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर निगम के इलेक्शंस होते हैं। पंचायत लेवल पे प्रधान के इलेक्शंस होते हैं। बाय दीज इलेक्शन जनरली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विलेजेस आर इलेक्टेड। नगर पालिका और नगर निगम में एक फर्क बता दें, नगर पालिका कौन होता है, नगर पालिका किसे कहते हैं और नगर निगम कहाँ होता है। जनरली कहा जाता है कि मोर देन 10 लाख जो जिस शहर की पॉपुलेशन होती है अर्बन एरिया की, वहां नगर निगम होता है, जहां का जो हेड होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं वो मेयर होता है। ओके, और वहां पार्षद चुने जाते हैं। जहां इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट अर्बन एरिया इज बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम पॉपुलेशन होती है तो उसे नगर पालिका कहा जाता है। एंड द हेड ऑफ दैट इज डिस्ट्रिक्ट, हेड ऑफ दैट अर्बन एरिया इज चेयरमैन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। चेयरमैन होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो सभासद जिन्हें कहा जाता है, दे जनरली आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस वार्ड्स, अलग अलग वार्ड्स में बटे होते हैं। इसी तरीके से लोकल लेवल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, प्रधान चुने जाते हैं। ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट होती है और जो सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की होती है इन्हीं गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाता है। ओके, सो दिस वाज द लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको 1992 के अमेंडमेंट के थ्रू ज्यादा एम्पावर किया गया है। 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया। उससे पहले क्या था कि इसका जो रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बता दें कि इसका जो जिसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, ये 1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था। राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहीं से स्टार्ट हुआ था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। जो मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमने आपको बता दिया है, ताकि सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा विलेज लेवल पे पहुंचाया जा सके, विलेजर्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो सके, और इसी तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट को ज्यादा एम्पावर कब किया गया? 1992 के अमेंडमेंट के थ्रू इनको एम्पावर किया गया। और देयर वाज ए फोकस्ड, इट वॉज फोकस्ड ऑन द रेगुलर इलेक्शंस, यानी उनको रेगुलर इलेक्शन पहले नहीं होता था, रेगुलर इलेक्शन कराने पे फोकस किया गया। इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन होता है जिसे राज्य चुनाव आयोग कहते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन टाइम टू टाइम। जब कभी उनका टाइम पूरा हो जाए तो इलेक्शन कंडक्शन का टाइम उसकी जिम्मेदारी होती है। अगली चीज क्या कहा जाता है कि सम सीट्स in this local form of government, some seats are reserved for SC, ST, OBC। यानी कुछ सीटें लोकल लेवल में ग्राम विलेज पंचायत में, पंचायती राज सिस्टम में कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं। यानी उस सीट से कौन इलेक्शन लड़ेगा, उसी पर्टिकुलर ग्रुप का। एससी मींस शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी सीटें रिजर्व की जाती हैं। मेनी स्टेट्स हैव रिजर्व नियर अबाउट 33% सीट्स, कुछ स्टेट्स में 50% सीट्स। इनके लिए अलग अलग प्रोविजन से उनको सीटें रिजर्व की गई। इसी तरीके से 1/4 सीट कहा जाता है, सॉरी 1/3 सीट्स आर
reserved for women. For the empowerment, women empowerment, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, for the participation of women in politics, there has been provision in village पंचायती राज system, 1/3 seats are reserved for women. महिलाओं के लिए 1/3 seats reserved हैं. Okay, so these are the general details, general informations regarding the federalism. किस तरीके से फेडरलिज्म वर्क करता है, यानी फेडरलिज्म में मेन चीज क्या होती है? डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, लैंग्वेज पॉलिसीज, हर चीज को कंसर्न किया जाए, कंसीडर किया जाए, हर प्रॉब्लम्स को समझते हुए पूरे देश को अच्छे से इन प्रॉपर वे चलाया जाए, ये होता है फेडरलिज्म. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच.